بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 14۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ کسی نہ کسی کے متعلق تو مجھے سوچنا ہی ہوگا۔ ظاہر کیا برا ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، یہ فرحاد تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، بس یوں ہی میری جوانی سے کھیلتا رہے گا۔ نہیں، اب بہت ہو چکا۔ اگر ظاہر مجھے پسند کر لے تو میں فرحاد کی طرف رخ نہ کروں۔ آئے اللہ، یہ شرعی پاجامہ پہن کر کتنا سمارٹ لگ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے سوچنے کا انداز بدلتا رہا، کبھی چچی جان کبھی چچا جان سے مخاطب ہوتے تو میں ان کی باتوں کا جواب دیتا، اس کے بعد پھر زرینہ کی سوچ کو ظہیر کی طرف میل کر دیتا۔ اس دوران چائے آ گئی۔ چائے پیتے وقت میں نے ظہیر کے دماغ پر اثر انداز ہو کر کہا، یہ لڑکی جو فرحاد کے ساتھ آئی ہے، اسے مسکرا کر دیکھو اور اس سے تعارف حاصل کرو۔ ظہیر نے فوراً مسکرا کر زرینہ کو دیکھا۔ زرینہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے نظریں ٹکراتے ہی وہ ذرا جھجک گئی اور سر جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی اپنے دوپٹے کے آنچل سے کھیلنے لگی۔ ظہیر نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ فرحاد کے ساتھ آئی ہیں؟ چچی نے جواب دیا، بیٹا یہ تمہاری پھپھی کی بیٹی زرینہ ہے، تم نے بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ اچھا، ظہیر نے کہا، اب تو پہچانی نہیں جاتی۔ میں نے پھر اسے حکم دیا، اس کے حسن کی تعریف کرو اور اپنے ڈیڈی سے کہو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، زرینہ بے تکلفی معاف کرنا، میں دل سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تم بے حد حسین ہو۔ زرینہ شرما کر اپنے سر پر آنچل رکھنے لگی۔ چچا جان نے ذرا سخت لہجے میں کہا، ظہیر یہ کیا بکواس ہے، تمہیں ایسی بات کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ فرحاد کو اس کی بے تکلفی سے شکایت پیدا ہوگی، کیونکہ آپا نے بہت پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ زرینہ کی شادی فرحاد سے کرے گی۔ میں نے جواب دیا، نہیں چچا جان، پھوپھی جان نے یہ رشتہ طے نہیں کیا تھا، ویسے بھی نہ تو زرینہ نے مجھ سے شادی کرنے کے متعلق سوچا ہے اور نہ میں سوچتا ہوں۔ میں نے تو اس کی شادی کے لیے 50,000 کے زیورات اور 1,00,000 روپے نقد پھوپھی جان کو دے دیے۔ کہیں سے اچھا رشتہ آئے تو پھوپھی جان اس کے ہاتھ فوراً سے پہلے پیلے کر دے۔ میری بات ختم ہوتے ہی ظہیر نے اپنے باپ سے کہا، ڈیڈی میں زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممی نے بھی ایک دن کہا تھا وہ کسی گھریلو قسم کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی۔ چچی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ زرینہ اپنے جہیز میں 50,000 کے زیورات اور 1,00,000 روپے لے کر آئے گی۔ ان دنوں وہ اسی چکر میں رہتی تھی کہ کسی راستے سے انہیں بڑی رقم مل سکتی ہے۔ انہوں نے چچا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی تائید کی، ہاں بیٹا، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں کتنی دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ زرینہ میری بہو بن جائے۔ چچا جان نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اتنا کہا کہ زرینہ کی والدہ ان کی دشمن بن بیٹھی ہے، اس لیے وہ بیٹی ان کے گھر نہیں دے گی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں پھوپھی جان کو سمجھا لوں گا، اگر یہ رشتہ ہو گیا تو برسوں کی عداوتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد چچی ہنس ہنس کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی۔ جب میں زرینہ کے ساتھ ان کی کوٹھی سے نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ چچی اس فکر میں تھی کہ کل صبح چچا جان کو 1,25,000 روپے کہاں سے لا کر دیے جائیں۔ اس وقت میں ہی ان کی مصیبت میں کام آ سکتا تھا۔ لہٰذا وہ میرے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرتی ہوئی میری کوٹھی میں آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی پھوپھی جان کے تیور بدل گئے۔ چچی جان کو خوب چلی گھٹی سنانا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں الگ لے جا کر عاجزی سے سمجھایا کہ دشمن خود چل کر ہمارے دروازے پر آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ پھر میں نے یہ بھی سمجھایا کہ ظہیر بہت اچھا لڑکا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، مار روڈ کی دکانیں اس کے نام پر ہیں، زرینہ اس گھر کی بہو بن جائے گی تو راج کرے گی۔ چچی اس کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، لہٰذا انہیں ایک بیٹی کی ماں بن کر مسلط سے کام لینا چاہیے۔ میری باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے چچی کے پاس آ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ جوان بیٹی کا تو گلے سے اتارنے کے لیے وہ پرانی دشمنی بھول گئی۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ مجھے معلوم تھا چچی میرے پاس
अनाज खिलाने आएगी। सच कहता हूँ, इस वक्त इनकी बेबसी और परेशानियों का ख्याल करके मेरा दिल मोम होने लगा था। मैंने सोचा वो दुश्मनी सही, मगर एक और बात से ज़्यादा परेशान करना मर्दानगी नहीं। बस बहुत हो चुका है, इस वक्त मुझे उनके काम आना चाहिए। मैंने यही किया। जब वो फूफी से बातें करने के बाद मेरे पास आई तो गुफ्तगू के दौरान मैंने खुद ही कहा कि इस सिलसिले में इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे अपना बेटा समझकर खिदमत का मौका दे। उन्होंने खुश होकर मेरी बलाएं ली, फिर अपनी मोहताजी और कलाशी पर पर्दा डालते हुए बोली, बेटे, मैं दूसरों को कर्ज देकर पछता रही हूँ। 6 माह पहले मेरा भाई अपने कारोबार के लिए मुझसे 2 लाख लेकर गया। उसने अभी तक वापस नहीं किए। ज़हीर मुझसे 3 लाख रुपए अब तक ले चुका है। ये सब बातें मैं तुम्हारे चचा जान से छुपाती हूँ, अब इनसे नहीं कह सकती। मेरे अकाउंट में ज़्यादा रकम नहीं है। तुम मुझे 1,25,000 कर्ज दे दो, मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूँगी। मैंने ज़रे लब मुस्कुराते हुए अपनी आनी अलमारी खोली और इनकी मतलूबा रकम निकाल कर इन्हें दे दी। वो मुझ पर कुर्बान होती जा रही थी, मेरी बलाएं लेकर लफ्ज़ों के फूल निछावर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे दुआएं देती चली गई। इनके बदले हुए रवैये को देख कर साबी की ये कह सकते थे अब इन्हें अकल आ गई है। उन्होंने सच्चे दिल से हमें अपना समझ लिया है। वो आइंदा एक दुश्मन की अकल से नहीं सोचेंगे। लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों की सोच कुछ और होती है, अमल कुछ और होता है। वो एक ही वक्त में ज़ुबान से दुआएं देते हैं और दिल से गालियाँ भी निकालते हैं। चाची की सोच भी यही कह रही थी। वो मेरे पास इतनी दौलत देखकर खुद रही थी और जब मंसूबे बना रही थी वो किस तरह मुझे बेटा बेटा कहकर मुझे एक माँ का प्यार देकर वक्तन फक्तन मुझसे रकमें वसूलती रहेगी। मैं अपनी पैदाइश के बाद ही माँ की ममता से महरूम हो गया था। चाची माँ के बेलौस मुकद्दस रिश्ते की डिब्बी बनकर मेरी महरूमी से फ़ायदा उठाना चाहती थी। अगर मैं ख्याल पाने के लफ्ज़ से वाकिफ ना होता तो यकीनन इनकी झूठी ममता के फ्रेम में आ जाता। इस वक्त जी में आया जो रकम मैंने कर्ज के तौर पर दी है उसे इनसे छीन लो। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी आंखों के जरिए असर वो खुद ही सारी रकम लाकर वापस मुझे दे देती, लेकिन दी हुई चीज़ को वापस लेना अच्छा नहीं लगता था। जो मेहरबानी कर दी सो कर दी। आइंदा इनके किसी काम न आने का फैसला कर लिया। दूसरी सुबह सबसे पहले मैंने ज़हीर की खबर ली। उसके दिमाग तक पहुंचने से पता चला वो कलाम पाक की कोई मुख्तसर सी आयत याद कर रहा था। मुझे ये सोचकर बेहद खुशी हुई कि मेरा इल्म किसी को सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जा रहा है। काश मैं हर इंसान को सीधा रास्ता दिखा सकता, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि लोग मुख्तलिफ मिजाज के आमल होते हैं। ज़हीर एक ही बार हदायत पर नेकी का रास्ता अख्तियार कर रहा था। इसके बरक्स चाची साहबा को बार बार ट्रांस में लाने के बावजूद इनके सोचने के अंदाज को नहीं बदला जा सकता था। जो लोग चच्ची की तरह ठोकरें खाने और तबाह हो जाने के बावजूद नहीं संभलते, फिर इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। इसके बाद मैंने चच्ची की सोच से रब्ता कायम किया। इस वक्त इनकी सोच से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। मैं तवज्जो से इससे ख्यालात पढ़ने लगा। वो घबराई हुई सोच में कह रही थी, अब क्या होगा। मैंने इन्हीं कपड़ों के नीचे वो रुपए छुपा कर रखे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, फराद से रुपए लेकर मैं सीधी अपने कमरे में आई थी। मैंने सोचा था कि सुबह नासिर को रुपए दूंगी। मैंने ये अलमारी खोलकर यहाँ कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियाँ छुपा दी थी। अब रुपए सेफ में रखते हुए डर लगता है। इसी डर से मैंने यहाँ रुपए रखे थे, मगर यहाँ से भी गायब हो गए। कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यकीनन कोई दुश्मन जादू या किसी अमल से मुझे तबाह कर रहा है। मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, फरहाद। लेकिन नहीं, फरहाद दुश्मन होता तो मुझे इतनी बड़ी रकम कभी ना देता, कभी जरीना का रिश्ता ज़हीर से करने पर आमादा ना होता। बहरहाल दुश्मन हो या ना हो, मेरी इस बात को पर कौन यकीन करेगा। तमाम बैंकों के अकाउंट्स मेरे लाखों रुपए गायब हो गए। सिर्फ बैंकों से नहीं, इस कमरे के सेफ से और अलमारी से भी लाखों जेवरात गायब हो गए। वो सोच रही थी। अब मैं भी हैरानी से सोच रहा था कि जिस घर में की दौलत पर हाथ साफ कर रहा हूँ वहाँ कोई दूसरा हाथ की सफाई दिखाने वाला कैसे पहुँच गया। ये तो मेरे लिए एक चैलेंज था। वो मेरी दी हुई रकम चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है। वो घर का कोई फर्द ही होगा। क्या ज़हीर ने ये हरकत की। मैंने ज़हीर के दिमाग को गिरफ्त में लेकर पूछा तो पता चला वो मुजरम नहीं है। मुझे भी यकीन था वो रास्त पर आने वाला ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने गजाला के ख्याल से रब्ता कायम किया तो मगर रब्ता कायम ना हुआ। इसका मतलब था वो शहर से कहीं दूर चली गई है। चाची साहबा के दिमाग में बैठकर पूछा तो मालूम हुआ पिछली रात गजाला के मामू आए थे। वो इनके साथ सुबह 6 बजे पिंडी चली गई है। चाची की सोच ने मुझे बताया कि जब वो मुझसे रुपए लेकर अपनी कोठी में आई तो गजाला ड्राइंग रूम में बैठी
अपने मामू से बातें कर रही थी। जब चची अपने कमरे में रुपए रखने गई तो इसके पास या कमरे के बाहर कोई मुलाजिम ना था। चचा जान अपने कमरे में सो रहे थे। यह नहीं, वो दो ही अफराद जाग रहे थे, एक गजाला और दूसरा उसका मामू। अब मुझे इन दोनों पर शुबा हो गया, मगर वो वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। फिलहाल इनसे दिमागी राब्ता कायम नहीं हो सकता था। वैसे इनसे जो भी मुजरम होता, मैं उसे अपनी रकम महसूद वसूल कर लेता। इस वक्त मैंने मुजरम को डील दे दी और चची की परेशानियों को समझने लगा। वो सोच रही थी अब मैं क्या करूँ। नासिर से कैसे कहूँ कि 1,25,000 इन्हें नहीं दे सकती। मुझसे बैंक के अकाउंट्स का हिसाब तलब करेंगे, तमाम चेकबुक्स उठा कर देखेंगे। इन्हें मालूम हो जाएगा पिछले 3 माह में लाखों रुपए बैंक से निकाले जा चुके हैं। वो रुपए कहाँ गए मैं खुद नहीं जानती। ज़्यादा सोचने की कोशिश करती तो मेरी सोच में गिरा पड़ जाती। सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती है। ये बात नासिर तस्लीम नहीं करेगी, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर बदनामी के रास्ते खुलेंगे। नासिर का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि मैं नौजवान लड़कों से दोस्ती करती और इन पर अपनी दौलत लुटाती। मैं बदनामी कैसे बर्दाश्त कर सकती? मेरा एक जवान बेटा और जवान बेटियाँ हैं। मेरी बूढ़ी जवानी एक तमाशा बन जाएगी। मैं क्या करूं? अभी नासिर नाश्ता करने आएंगे तो मुझे बैंक जाने के लिए कहेंगे। मैंने इतनी बड़ी तबाही की दास्तान नहीं सुना सकती। उनका मुंह बंद करने के लिए दोबारा फराज से कर्ज नहीं मांग सकती। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे दुनिया वालों का डर नहीं, सिर्फ एक नासिर मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अगर वो मुझसे हिसाब तलब करे तो फिर तबाही का राज नहीं खुलेगा। इसके सिवा किसी की मजाल नहीं कि कोई मुझसे एक पैसे का हिसाब पूछे। लेकिन अपने अमाल का हिसाब तो देना ही पड़ता है। आकबियत में खुदा हिसाब मांगता है। दुनिया में खामद, अगर ये खामद ना होता तो मैं कितनी आज़ाद होती। मुझे किसी का खौफ ना होता। कोई मुझ पर रोब जमा कर लाखों का हिसाब ना मांगता। हाँ, अगर मेरे रास्ते से हट जाए नासिर तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। कुछ दिनों के लिए उसे घर से चला जाए, इस शहर से चला जाए, अल्लाह करे कि इस दुनिया से चला जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर नक्सर रुखसत हो जाए तो फिर किसी दूसरे रिश्ते को आंकने तो मुझे जो जवान छोकरों से इश्क करने का ताना दे। नासिर की आंख बंद हो जाए तो मेरे अमाल का खाता खोलने वाला कोई ना होगा। ये खौफ परेशानियां जो 3 माह से जलजले के झटकों की तरह मुझे अंदर ही अंदर तहस नहस कर रही हैं, सब यकलख दूर हो जाएगी और मैं आज़ादी और सुकून से बकिया ज़िंदगी गुजार सकूँगी। बस अपने बचाव का एक ही रास्ता है, मेरी ज़िंदगी का और नासिर की मौत और अमाल का खाता बंद। ना मेरा हकम होगा, ना मुझे किसी पर हुकूमत, मेरे पीछे पर कोई हुकूमत कर सकेगा। ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। मैं रानी से उसकी सोच सुन रहा था, रानी से उस बात को जो बरसों से साथ निभाने वाले मियाँ बीवी थे, उसकी मौत की फैसला कर रही थी। अपनी बका के लिए खामद को फना लाजमी समझ रही थी। चचा जान ने उनके लिए क्या नहीं किया था। उनकी खातिर मेरे अब्बा मरहूम की जायदाद पर नाजायज कब्जा जमाया था। मुझे फरेब देते रहे। उनके लिए उन्होंने ये आलीशान कोठी बनवाई, इन्हें रेशम के जोड़े पहनाए, इन्हें जवानी से बुढ़ापे तक सोने चांदी जवाहरात से सजा कर रखा। इनके लिए इस दुनिया को जन्नत बना दिया। बोल औरत, इससे ज्यादा क्या चाहती है? तेरा दिल ना भरा, तेरा पेट ना भरा, अब पीने के लिए खामद का सिर्फ लहू बाकी रह गया। मेरे बेखबर बेईमान चचा जान बेईमान जिंदगी का ख़त्म शुद। अक्सर बेईमान बीवियों के हाथों से लिखा जाता है, आपकी जाने हयात, आपकी हसीन कलो पत्थर आपके लिए जहर का प्याला लेकर आ रही है। कहाँ है चची साहबा, क्या कर रही है? उनका दिमाग सोच रहा था, वो सोच पर अमल कर रही थी, दूध में जहर घोल रही थी। चचा जान की आदत है कि सुबह नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे खाते और 1 गिलास दूध पीते। इस रोज़ वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी नाश्ता था। मैंने चची की सोच पर दस्तक की। बेगम नासिर ये क्या कर रही है? साथ के लिए वो ठटक गई, फिर इसकी सोच ने जवाब दिया, नासिर के लिए नाश्ता लेकर जा रही। मैंने हुक्म दिया, अंडों की प्लेट रख दो, सिर्फ दूध का गिलास लेकर जाओ और अपनी इस हरकत के मुतल्लिक सोचती जाओ। वो सोचने लगी। मैं दूध का गिलास लेकर किचन से निकल रही, ड्राइंग रूम से गुजर रही हूँ, अब कॉरिडोर में आ गई हूँ। मुझे नासिर के कमरे का दरवाज़ा नज़र आ रहा है। रुक जाओ। मैं रुक गई हूँ। नासिर के कमरे का मुकाबल किसका कमरा है? मेरा। अपने कमरे में जाओ। मैं नासिर के कमरे की तरफ से पलट गई हूँ और अपने कमरे में जा रही हूँ।
دودھ کا گلاس سگار میز پر رکھ دو۔ میں دودھ کا گلاس سگار میز پر رکھ رہی ہوں، اب اپنا لیٹر پیڈ قلم لے کر کشن پر بیٹھ جاؤ۔ میں سگار میز کے خانے سے لیٹر پیڈ قلم اٹھا رہی ہوں اور کشن پر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ لکھو، لیٹر پیڈ کے سادے کاغذ پر لکھو۔ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ اعتراف نامہ لکھ رہی ہوں۔ ہر انسان کو اپنی موت آپ مرنا ہے۔ یہ زہریلا دودھ میری زندگی کے لیے ہے، اس لیے میں اسے پی رہی ہوں۔ اپنی موت کی آپ ذمہ دار ہوں۔ بقلم خود شمشاد بیگم زوجہ ناصر علی۔ وہ میری سوچ کے مطابق لکھتے رہی۔ اس کے بعد میں نے حکم دیا، لیٹر پیڈ قلم سگار میز پر رکھ دو اور دودھ کا گلاس اٹھا لو۔ میں لیٹر پیڈ اور قلم زمین پر رکھ رہی ہوں۔ اب میں نے گلاس اٹھا لیا ہے، شاباش دودھ پی لو۔ دوسرے لمحے وہ سوچ رہی تھی، میں دودھ پی رہی ہوں، کتنی تلخی ہے میرے حلق میں، میرے سینے میں گارے سلگ رہے ہیں، میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا۔ میں اندر سے جل رہی ہوں، جیسے میرا اکاؤنٹ، میرا سیف خالی ہو گیا، میں بھی خالی ہو رہی ہوں۔ اب مجھ میں سوچنے کی سکت نہیں ہے۔ تاریکی نہیں، میں قبر تاری جا رہی ہوں۔ گہری خاموشی اور سناٹا، ایک عورت کی سوچ کے تمام